Okay, good morning, students. So we continue with the Python. Last week we discussed discussed the introduction of computer, your Python language, then different type of languages, then language translator. फिर हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर्स, ठीक है। तो हमने इसके बाद शुरू किया था कि कुछ सिंपल कैलकुलेशंस की थी, ठीक है। जैसे find out the total marks, average, area of a circle, area of a rectangle, very small programs we discussed. Now we will continue with this. So now I'm making here very small program, and that is important now. In last week we made one program. That program with a very late, there are so many latecomers. Then we discussed how we can find the sum total of 5 subjects. Okay, तो हमने लिया था एक इंग्लिश, इसमें हमने मार्क्स दे दिए थे 78. Then there is maths, then SST, then science, then computer. So these are the 5 subjects, and now we find out total, then English, then math, then SST, then science, then computer, and then we find out percentage. Percentage is total divided by 5. Then we display total marks, total, then percentage. We save the program, and then run module. Answer is here. Now in this program I have given the fixed value of variables. इन्हें variables कहते हैं, and I have given fixed value. Suppose I want to get the input from user. What I am doing here, in place of giving value here, I want कि जब program execute हो तो user fill करे कि English में कितने marks हैं, math में कितने marks हैं, SST में कितने marks हैं, science में कितने marks हैं, computer during run time. जब program चल रहा होगा तो user enter the data. So therefore this, there is input command. So you will give here input bracket start, any message you want to display, enter marks of English. ये हमने मैसेज डिस्प्ले कर दिया।
Then second, marks in maths. Then marks in SST. Then marks in science. Then marks in computer. So look at here. Whenever I will save the program and then execute the program, look at here. Enter the marks in English. I enter 91. Marks in math, I enter 78. Marks in SST, 87. Marks in science, 76. Marks in computer, 99. So this cursor is blink here and I will enter the, I will type the data and press enter key. जैसे मैं 91 टाइप करूंगा और एंटर की प्रेस करूंगा, इंग्लिश में 91 इंग्लिश में सेव हो जाएंगे, और जब मैं 78 टाइप करके एंटर प्रेस करूंगा, 78 will be saved in math, then 87 saved in SST, 76 will be saved in science, and 99 will be saved in computer. But there is one issue. When I press enter key, there is error. Who will guess कि कौन सी error हुई होगी? Anybody, any student बेटा guess कि error क्या है, ये क्या problem क्या आई? Yes, Gaurav, any guess from your side? स्पेस नहीं डाली. नहीं बेटा, अब ये देखो बेटा, बड़े ये हमेशा याद रखना. नहीं बिल्कुल कोई ऐसी कोई चीज नहीं है. अब बड़े ध्यान से एक चीज मेरी याद रखना. यस ईशा, यस सर, हमें टोटल में भी कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी? नो इश्यू बेटा, नो. अब बेटा ये प्रॉब्लम ये आई है, ये याद रखना कि दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम विल आल्सो इन अदर लैंग्वेजेस. जब आप जावा लैंग्वेज करोगे या आने वाले टाइम में विजुअल बेसिक करोगे, VB.NET करोगे, so many languages are there. These languages are interlinked, similar to each other. So problem is that when we use input command and we receive the data, आपका data string format में सेव होता है. अब आप कहोगे string क्या है? जैसे ही मैंने प्रोग्राम में इंग्लिश में 91 एंटर किए थे तो मेरा इंग्लिश ऐसे बन गया. इंग्लिश में वैल्यू आ गई इन डबल कोट्स 91, स्ट्रिंग वैल्यू आई. जैसे मैंने 9 उसके बाद नेक्स्ट एंटर किया 78, तो मैथ में स्ट्रिंग वैल्यू आई 78. तो जब भी आप इनपुट कमांड यूज करोगे, we will get the data in string format. वो numeric data नहीं है. That data is not numeric. That data is of string type. And for how we can add string data type? Not possible. So there is an error. Error is, Himanshu, is it clear? Yes, sir. इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करना है, इसके मैं 2 तरीके बता रहा हूं. वो जो एरर किस कारण में आया था? एरर इसलिए क्योंकि जो इनपुट आ रही है वो स्ट्रिंग नेचर की है. वो नेचर, उसने डाटा की नेचर क्या ले ली? स्ट्रिंग ले ली. ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम को 2 तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं. या तो आप क्या करो, इंग्लिश लेने के बाद एक और वेरिएबल ई ले लो और जो डाटा आपके पास आया था उसको इसमें कन्वर्ट कर लो, स्ट्रिंग में, नंबर में कन्वर्ट कर लो. या फिर क्या करना है आपने,
हिमांशु म्यूट योरसेल्फ. Okay, sir. आपने देयर आर टू टाइप, वन इज कोल्ड फ्लोट और इंटीजर. आपने पूरी कमांड को फ्लोट या इंटीजर में डाल दो. फ्लोट है, अगर डेसिमल वैल्यू लेनी है तो फ्लोट लोगे. इफ यू आर नॉट वांटेड टू टेक डेसिमल वैल्यू तो आपने इसको इंट ले लेना. तो दिस इज योर चॉइस, फ्लोट रो या इंटीजर. अब इससे क्या होगा, ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा. मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दे रहा हूं. लुक एट हियर. मैंने इनपुट कमांड लगाई, स्क्रीन पर मैं कर्सर ब्लिंक किया, आई एंटर 91. लुक एट हियर, आई डिस्प्ले x. लुक एट हियर इन सिंगल कोट्स. अब अगर मैंने इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो आई विल टेक इंट इनपुट. इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग. हम एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं. एंटर डाटा, हमने डाटा एंटर करा दिया और कराने के बाद उसको इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर दिया. लुक एट हियर, आई एंटर x. ओ look at here, enter data, I enter 98. look at here, if I display x तो ये numeric value है. we converted that value into number. तो इसको ना मैं एक इस प्रोग्राम को एक और तरीके से कराता हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये वाला प्रोग्राम इज ए बिग प्रोग्राम, आपको इससे क्लियर नहीं होगा. आई एम गिविंग वन मोर एग्जांपल. लुक एट हियर, आई एम मेकिंग वेरी सिंपल प्रोग्राम. I take one variable x, input, enter first number, then I take another variable y, input, enter second number, and then I add, I take variable total. Here we add x plus y and print total. अब मैंने इसको प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूं और रन कर रहा हूं. एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 20. देखो टोटल में 1020 आ रहा है, क्योंकि इसकी नेचर क्या थी, स्ट्रिंग नेचर थी. सपोज मैंने एंटर किया होता दिनेश, दूसरे में नंदा, दोनों का नेम को हमने जोड़ दिया, क्या बन गया, दिनेश नंदा. तो अगर हमने इस प्रोग्राम को इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते, आई टेक इंट हियर और ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट लास्ट में क्लोज, स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, पूरी की पूरी स्टेटमेंट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया. अब ये देखो, मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूं. आई एंटर फर्स्ट नंबर 10, आई एंटर सेकंड नंबर 20, आंसर इज 30. तो इसका ये रीजन था कि जब हम इनपुट कमांड लगाते हैं, वी गेट द डाटा इन स्ट्रिंग नेचर. ठीक है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है स्ट्रिंग को नंबर में. तो आप तो यहां तो ऐसे कर लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो. पहले इनपुट ले लो, फिर हमने इंट आई एक्स को इंट में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने वाई को इंट में कन्वर्ट कर दिया. आप ऐसे कर लो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एंटर 10, आई एंटर 20, लुक एट योर आंसर इज 30. स्टूडेंट्स, कंसेप्ट इज क्लियर? ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ना था, या तो इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जो आपके पास मार्क्स होते हैं फ्लोट ही होते हैं. तो या तो इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लो, या फिर
जब आपने ऐड करना है सभी को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्लोट x I am running the program. I enter 89 77.50. So look at here. So this is your program. ये तो यहाँ पे कन्वर्जन कर लो या ऊपर ही कन्वर्ट कर दो, टाइप कास्टिंग, दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। तो आपको जब भी इनपुट कमांड लगानी है तो यू विल हैव टू यूज टाइप कास्टिंग, टाइप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हिमांशु, इज इट क्लियर? ईशा, यस। गौरव, दीपक, नव्या, वानी, सान्या, तवलीन, तनीषा, ओके बेटा, ओके। एंड क्रिश, Krish, no response from your side. Okay, students. So this is the program. Note down this. But I prefer कि आप यहाँ पे float यहाँ पे ना लगाओ, आप यहाँ पे लगाओ। Float start, bracket start, and in the end bracket close. So look at here. Deepak, unmute yourself. Yes, sir. Coding is clear? Yes, sir. Okay. अब मैं यहाँ पे कोडिंग टाइप करूंगा एंड यू विल टेल उस प्रोग्राम में कौन कौन सी एरर्स हैं, ठीक है? आई एम टाइपिंग द कोडिंग एंड यू विल टेल व्हाट आर द डिफरेंट एरर्स इन दिस कोडिंग।
Okay, one by one. First error. Unmute yourself, beta. This is discussion. Participate in this discussion, beta. Yes, Sir, Isha. A is equal to 88. Okay, very good. Whenever we were giving the value, take the variable first, then value. Same is in the case of B. Next. Sir, C is equal to A plus B and print brackets में आएगा C. Yes, there in mathematics, it's okay. A plus B is equal to C. But in computer, there is no any type of statement that is A plus B equal to C. जिसमें भी आपने ऐड करना है, कैलकुलेशन लेनी है, उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, जिसके जो कैलकुलेशन करेगा उसको आपने राइट हैंड साइड में लेना है. एंड इन पाइथन statement is enclosed within brackets. So look at here, 177. Okay, students. Now, look at here. Okay, students. On screen there is an answer false. Who will tell what is the meaning of this statement? Himanshu. Yes. सर एक के बाद आपने डबल इक्वल टू साइन डाला आपने. तो इसका मतलब क्या हुआ? What it means? सर आवाज नहीं आ रही मेरी. मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ? डबल इक्वल टू का. हर्षिका. मीनिंग. यस बेटा, मीनिंग. यस हर्षिका. सर ये फॉल्स इसलिए है बिकॉज हमने पहले ए की वैल्यू 88 डाली थी पर हम डिस्प्ले 80 करवा रहे हैं. नो बेटा नो. स्टूडेंट्स लुक एट हियर. ये हमारे पास दो वैल्यू को कंपेयर कर रहा है. हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, क्या ए 80 के इक्वल है? नो, दैट्स व्हाई आंसर इज फॉल्स. अगर हम कहते ए 88 के इक्वल है, कंपेयर कर रहे हैं, तो आंसर आता ट्रू. लुक एट हियर. तो जब भी आपने डबल इक्वल टू यूज करना है, इट मींस वी आर कंपेयरिंग टू वैल्यूज. इज इट क्लियर? ये नोट कर ले फिर. हाँ, नाउ टेल मी. अगर मैं यहाँ पे करूं a is greater than equal to 10, क्या a 10 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है? यस हिमांशु. वैल्यू ऑफ a is सर यहाँ पे a की वैल्यू 88 है और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि या 10 जो a की वैल्यू है वो a से ज्यादा है, वो 10 से ज्यादा है और या 2 से बराबर है. तो 10 से ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा. सो लुक एट हियर. ट्रू आएगा आंसर क्योंकि ज्यादा है वैल्यू. यस. तो इसे कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स. दीज आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स. तो ये कौन कौन से हैं? डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू.
अकेला ग्रेटर देन, अकेला लेस देन, ये कल हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर. ओके स्टूडेंट्स? ओके, so I am now Yes, sir. closing the meeting. Wait. Tomorrow we will continue with the relational operator. Okay, students. If you have any doubt, you can raise your hands. Okay, take care. Bye. No, sir. Bye, sir. Bye.